کے لیے مرہم تیار کر کے لاؤں گا آقا. آؤ. میرے آقا ملکہ، یہ خبر دیتے ہوئے میں شرم محسوس کر رہا ہوں، لیکن آپ کو بتانا ضروری ہے. کہو. ترگت رئیس امیر البحر محمد پاشا کے حکم کو نظر انداز کرتے ہوئے 80 جہازوں کے ساتھ محل کے سامنے لنگر انداز ہو چکے ہیں. آقا کو جا کر ہمارے آنے کی خبر دو. آپ کا جو حکم پاشا. میں نے سختی سے ہدایت کی تھی سوکلو کہ رئیسوں کو پایا تخت سے دور رکھنا ہے تمہیں. میں نے دور رکھنے کی کوشش کی تھی پاشا، لیکن ترگت رئیس بحری سپاہ پر کتنا اثر رکھتا ہے یہ تو معلوم ہے. میرے اس منصب پر مقرر ہونے سے پہلے سے ہی ایسا ہے. اس میں میری غلطی تلاش نہ کیجیے. پاشا، آقا آپ دونوں کے منتظر ہیں. آؤ. میرے آقا، کیا تم دونوں پر اعتماد کر کے میں نے خطا کر دی؟ یہ سب کچھ آخر کیوں ہو رہا ہے؟ محمد پاشا، میں نے تمہیں امیر البحر اس لیے مقرر کیا تھا کہ تم بحریہ پہ قابو رکھو. محل کے سامنے جہاز لنگر انداز کیوں ہوئے؟ ترگت رئیس میرے حکم کے باوجود آ پہنچا آقا. اسے طلب کیا ہے، اس سے جواب ضرور مانگوں گا، لیکن وہ اپنی منمانی سے باز نہیں آئے گا. میرے آقا، آپ کو پریشان نہیں کرنا چاہتا، لیکن ینیچروں کے حالات اور رویہ ہمارے لیے سازگار نہیں ہے. آپ تو یہ جانتے ہی ہیں کہ وہ پہلے بھی کئی بار ایسا کر چکے ہیں. ینیچروں کے سالار فرحت آغا کو کئی بار ہدایات دی ہیں میں نے، لیکن کوئی مثبت نتیجہ برآمد نہ ہوا. ان باتوں کا کیا مقصد ہے؟ آقا، چہار جانب افواہیں گردش میں ہیں. سپاہی بھی، عوام بھی آپ کی سنگین بیماری کے حوالے سے باتیں کر رہے ہیں. اس کے علاوہ تمام کفار نے اس خبر کو سارے جہاں میں پھیلا دیا ہے. یہ کہتے ہوئے میری زبان لڑکھڑاتی ہے، اگر یہی صورتحال رہی تو بغاوت بھی ہو سکتی ہے. میں کتنی اذیت میں مبتلا تھا اور ان لوگوں نے میری موت کا اعلان کر دیا. رستم پاشا، مرحوم شہزادے محمد کے نام پر جو مسجد بنوانے کا حکم دیا تھا وہ مکمل ہو گئی ہے کیا؟ ہو گئی ہے آقا. اعلیٰ، تو ہر گلی کوچے میں منادی کرتی جائے. جمعے کی نماز میں وہاں ادا کروں گا. آقا کیسے ہو سکتا ہے؟ حکومت صاحبان، میرا فیصلہ اٹل ہے پاشا. جو شخص بھی میری موت کی افواہیں پھیلا رہا ہے وہ آئے اور آ کر دیکھ لے مجھے اپنی آنکھوں سے. آپ کا حکم میرے سر آنکھوں پہ میرے آقا.
اے خلق خدا، اعلان خاص سماعت کیجیے۔ بادشاہ سلطان سلیمان خان محترم آئندہ جمعۃ المبارک کے روز مرحوم شہزادہ محمد کے نام پر بنائی گئی مسجد میں پہلی نماز ادا کریں گے۔ لاکھ لاکھ شکر ہے تیرا میرے رب، آقا صحت یاب ہو گئے، آقا ٹھیک ہو گئے، لاکھ لاکھ شکر ہے۔ ترگت رئیس، محمد پاشا، تمہیں جو حکم دیا تھا اس کی نافرمانی کر کے، پائے تخت کا حصار کر کے اپنی حدود سے تجاوز کیا ہے رئیس۔ کوئی معقول وضاحت ہے اس کی تمہارے پاس؟ میری سماعت تک بعض افواہیں پہنچی تھی پاشا، صورتحال معلوم کرنے اور ضرورت پیش آنے پر آقا کی حفاظت کے لیے آیا ہوں۔ آقا آئندہ جمعے کے روز مرحوم شہزادہ محمد سے منسوب مسجد میں نماز ادا کریں گے۔ دعا مانگو کہ اس دن وہ ان باتوں پر یقین کر لے۔ خدا کا شکر ہے آقا، بالآخر نئے مرہم نے اپنا اثر دکھا دیا۔ انشاءاللہ آپ بہت جلد صحت مند ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ آقا کی جمعے کی نماز میں شرکت کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کوئی پریشان کن بات نہیں ہوگی امید ہے؟ فیصلہ طے پا چکا ہے خرم، اپنے پسر سے منسوب مسجد میں جمعے کی نماز ادا کرنے جاؤں گا انشاءاللہ۔ آقا کو ہوش آ گیا ہے مہرما؟ آ گیا ہے۔ اپنے درمیان نا اتفاقی ختم کر دو فی الحال۔ تم دونوں کا یہ رویہ آقا کی پریشانی میں اضافہ کر سکتا ہے۔ مبارک ہو برادر۔ شہزادی، شہزادگان، آقا اب سب کے منتظر ہیں۔ آقا جس وقت مسجد میں ہوں گے تب قرآن خوانی کروائی جائے گی فاتحہ، قربانی دی جائے گی، کھانا تقسیم کیا جائے گا، اور میں چاہتی ہوں کہ تم نگرانی کرو اس کی۔ آپ کا جو حکم ملکہ۔ انشاءاللہ مرحوم شہزادے محمد کی یادگار ہمیشہ قائم رہے گی، اور اس مسجد کے گنبد کے نیچے پڑھی جانے والی فاتحہ سے جنت کا در کھل جائے گا ان کے لیے۔ آمین۔ تکلیف ہے کیا آقا؟ ہاں تکلیف ہے ابھی۔ افسوس ہے کہ صورتحال اچھی نہیں ہے آقا۔ آپ کی زخم
کافی خراب ہو چکے ہیں. ایسی حالت میں نماز جمعہ کے لیے جانا ممکن نہیں ہے. تم درد کم کرنے کی دوا دے تو کافی ہے. ابھی تک دیکھنا وہ ضرور آئیں گے. آتے ہی ہوں گے انشاءاللہ. ہاں ضرور آئیں گے. اللہ کے نام پہ خیرات دے دو. یہ لو یعقوب، دے دو اسے. اللہ راضی ہو تم سے. اللہ تم سے بھی راضی ہو. راضی ہو. اوہو میرے سامنے سے ہٹو اے آدم. جسے دیکھو سامنے آ جاتا ہے. آدب، سلطان سلیمان خان تشریف لا رہے ہیں. رئیس یہاں بھی سبب نہیں آیا. شہزادے مصطفیٰ بھی پہنچنے والے ہیں. آقا جب صحت مند ہو چکے ہیں تو ان سب باتوں کا کوئی فائدہ نہیں رہا. فائدہ تو ہم حاصل کریں گے شہزادے. ہر کسی کو اس کی سزا ملنی چاہیے. بحریہ پر قابو رکھنا تھا پاشا. یہ ٹھیک نہیں ہوا. ترگت رئیس مملکت کے رسم و رواج نہیں جانتا. اس پر قابو پانا مشکل ہے، لیکن اس کی آمد فائدہ مند ہے شہزادے. آقا اسے سزا ضرور دیں گے. شہزاد خان، پاشا محترم، لقمان آقا نے خبر بھیجی ہے. آقا نماز کے لیے تشریف نہیں لے جائیں گے.
खल्क खुदा अजीम आका सुल्तान सुलेमान खान मोहतरम नमाज अपने महल की मस्जिद में अदा करेंगे। इस मस्जिद में वो पहली नमाज किसी और वक्त अदा करने तशरीफ लाएंगे। क्या हो गया आपको? لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم। हकीम साहब, मेरे बस में जो कुछ था कर लिया पाशा, बाकी अब अजीम रब पर छोड़ दिया है। इंशाअल्लाह अल्लाह आका को हमारे लिए बख्श देंगे। मैंने जिंदगी में कभी खुद को इतना बेबस महसूस नहीं किया। जब मुझे अंधे कुएं में डाल दिया गया था तब भी ऐसा महसूस नहीं हुआ था। दुश्वार दिन गुजर ही जाएंगे इंशाअल्लाह। आओ। मलिका, सुंबुल आगा तशरीफ लाए हैं। आने दो। मलिका, मलिका, तमाम शहर बेचैन है क्योंकि आका ऐलान के मुताबिक मस्जिद न पहुंच सके, इसलिए पूरे शहर में अफवाहें हद से तजावुज कर गई हैं। हर तरफ कयामत मची हुई है। तुमने यहाँ आने की जहमत क्यों की फरहत आगा? आका की वफात के मुतालिक चेमगोइयां हो रही हैं पाशा। हकीकत जो भी हो बताइए, हमें भी मालूम हो। चेमगोइयां करने वाले सजावारों को जिंदान की नजर क्यों ना कर दिया तुमने? यनीचर के सालार की हैसियत से सवाल पूछना, हकीकत जानना मेरा हक है, वरना सिपा पर काबू कैसे रख सकूंगा? तुम काबू रखोगे फरहत आगा, बसूरत दीगर तुम्हारा सर भी कलम हो सकता है। खुदा का शुक्र है कि सुल्तान सुलेमान खान मोहतरम सही सलामत हमारे सरों पर कायम है। जो आप कह रहे हैं अगर हकीकत है तो आका को हमारे लिए बख्शने वाले अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, लेकिन नहीं तो अगर वो अल्लाह की रहमत में जा चुके हैं और ये बात हमसे छुपाई जा रही है तो ये नीचरों का रास्ता कोई भी नहीं रोक सकता। पाशा मोहतरम, यह आपके लिए है। खैरियत तो है पाशा? कोई बुरी खबर है क्या? नहीं महमूद, एक खुशखबरी है। जानते हो उस शख्स का रास्ता बंद किया था, जहरीला तीर सीधा उसके सीने में बेबस हो गया। शहजादे मुस्तफा पायतख्त के करीब पहुंच चुके हैं। आला, महल में इस बात की खबर है क्या? अभी नहीं है रईस। आका बिस्तर मर्ग पर हैं, यह हकीकत है। फौरन फरहत आगा को खबर भेज दो। जनीचरों को भी मालूम होना चाहिए वली अहद शहजादे और मुस्तकबिल के सुल्तान महल तशरीफ ला रहे हैं। आपका जो हुक्म। फरहत आगा खुले अल्फाज में धमकी देकर गया है। आका की सूरत हाल को जब तक अपनी आंखों से नहीं देखेगा तब तक सिपाहियों पर काबू पाना और उन्हें रोकना मुश्किल होगा। बरसों से इसी लम्हे का इंतजार कर रहे थे वो। यकीनन वो इस मौके को जाया नहीं होने देंगे। हमें कुछ करना होगा मलिका। क्या है तुम्हारे जहन में? यनीचरों से बात करने की जरूरत है। उन पर यह साबित कर दें कि हम मजबूत हैं। शहजादे सलीम मोहतरम तख्त के नायब की हैसियत से मनसब पर कायम रहेंगे। ऐसे हालात में
उन्हें आका के नायब के तौर पर जेनीचरों से खिताब करना होगा। ऐसा करना जरूरी है। अपनी औलाद को अपने हाथों से मौत के मुंह में झोंक दूं? सलीम वहां गया तो वापस नहीं आएगा, हरगिज नहीं। नहीं हो सकता ये, बिल्कुल भी नहीं। शहजादे, क्या हो रहा है पाशा? हम पर हमला तो नहीं होने वाला? अगर हम कुछ देर और खामोश रहें तो यही होगा। सूरत हाल संगीन हो चुकी है। जेनीचरों को उनकी औकात याद दिलाने की जरूरत है। मशवरा क्या है पाशा? सल्तनत के नायब के तौर पर जेनीचरों के सामने जाना होगा और आका सही सलामत है। आपको ये खुसूसी तौर पर उन्हें बताना होगा शहजादे मोहतरम। अगर किसी ने गुस्ताखी की कोशिश की या अगर सूरत हाल से फायदा उठाकर मुझे रास्ते से हटाने की नियत हुई उनकी, आका की यकीनी सूरत हाल मालूम किए बगैर कोई भी ऐसे जुर्रत नहीं कर सकता। अपने मुकाबिल आपको देखकर वो खौफ से चुप साध लेंगे। आप भी चलेंगे क्या? यकीन करें, उन्हें मुझसे मिलने की कोई ख्वाहिश नहीं, लेकिन अमीरुल बहर महमद पाशा आपके हमरा जाएंगे। शहजादे, ये एक मौका है। मैं चाहता हूं आप अपने दलेराना रवैये से उनके दिल पर अपनी दहशत कायम कर दें और क्यों आपको सल्तनत का नायब तैनात किया गया ये अच्छी तरह समझा दें। शहजादे मुराद कल शब पुरसुकून नींद सोए हैं खातून। अब उनकी नींद बेहतर होती जा रही है। आला। गजनफर से कहो फौरन तैयारी करे। महल से बाहर जा रहा हूं। आपका जो हुक्म शहजादे। शहजादे, जेनीचरों से मुलाकात करने जा रहा हूं नूरबानो। आका सही सलामत है। ये बात जब तक मेरी जबानी नहीं सुनेंगे तो बगावत का इम्कान रहेगा। नहीं सलीम, हरगिज मत जाइए। ऐसे मौके पर ये मुनासिब नहीं होगा। अपनी जान खतरे में क्यों डाल रहे हैं आप? मेरे सामने वैसे भी दो रास्ते हैं नूरबानो। या तख्त नशीन होऊंगा या फिर अपनी जान से जाऊंगा। आज नहीं तो कल ऐसा होगा और यही हकीकत भी है। मैं इसका सामना करने पर मजबूर हूं। नहीं सलीम, मिन्नत करती हूं मैं आपकी, खुदा रहा। मेरी मजबूरी है नूरबानो, और रास्ता नहीं कोई। सुलेमान, या अल्लाह तो मदद कर हमारी। शुक्र है खुदा का। शुक्र है खुदा का। हुर्रम सुल्तान से मिलना चाहती हूँ अभी इसी वक्त। एक लम्हा जाया नहीं कर सकती वरना इसके बाद बहुत देर हो जाएगी। नामुमकिन है खातून, मैं अंदर किसी को नहीं भेज सकता। लुकमान आगा, खुदा के लिए इजाजत ना दी तो शहजादे सलीम को हम खो सकते हैं। शहजादे सलीम जेनीचरों के पास से वापस आएंगे या नहीं, ये एक मौमा है। मजरू होंगे ये तो आश्कार है। दुरुस्त कहते हैं आप पाशा। शहजादे मुस्तफा का रास्ता हमने काट दिया है तो अब शहजादे बियाजत का कोई भी रकीब नहीं है। बाद अब शहजादे मुस्तफा मोहतरम तशरीफ ला रहे हैं।
खातिर अपनी जान दे दूं, यही मेरी ख्वाहिश थी। शहजादे सलीम तशरीफ ला रहे हैं। जो कुछ भी कहना है फौरन कहो नूरबानो। शहजादे सलीम ये नीचरों के पास गए हैं। खुदारा आप कुछ करें, खुदारा। खुदा का शुक्र है कि आका सलामत है। अल्लाह की इनायत से जल्दी बेहतर हो जाएंगे। कोई भी किसी किस्म का फसाद बर्पा ना करे। ऐसा करना ठीक नहीं होगा फरत आगा। अगर ऐसा हुआ तो बहुत से लोगों का सर कलम होगा, इनकी जान चली जाएगी। जिसे जान कहते हैं वो सिर्फ एक सांस है शहजादे। जब तक आका की सांसें सलामत हैं तब तक हम कतन बगावत नहीं करेंगे और ना ही गद्दारी करेंगे। हमारी जान आपके लिए फिदा हो, लेकिन आज नहीं तो कल तख्त नशी बदलेगा और तख्त का नया मालिक इसका सबसे ज्यादा हकदार शहजादा ही होगा, ये याद रखिए आप। हद में रहो फरत आगा, अपने हुजरे में नहीं हो तुम। मैं दुनिया पर हुक्मरानी करने वाले तुर्क खानदान आलिया से ताल्लुक रखता हूं। यह फैसला कब से ये नीचर करने लगे कि तख्त पर कौन बराजमान होगा। कैसी मदद मांग रही हैं आप? सलीम आपके पास क्या है? ये नीचरों के पास क्या है? वो उनका गुस्सा मेरी औलाद को खाकसर कर
लेकिन जानती हूँ तुम्हारी बात जरूर सुनेंगे। उसे उनसे बचा लो खुदा। मालूम है ये तुम मेरी खातिर नहीं करोगे। लुकमान, कोई खबर आई क्या सलीम की? अब तक नहीं मलिका। इनका माथा तो आग की तरह जल रहा है। लुकमान, फौरन जाके हकीम को बुलवाओ, फौरन। या अल्लाह। पीछे हट जाओ। तुम्हारे सामने इस अजीम सल्तनत के नायब शहजादा सलीम मोहतरम मौजूद हैं। आओ। जान फिदा, क्या हुआ? कुछ मालूम हो सका क्या? नहीं मालूम हो सका। अगर सलीम को कुछ हो गया, उन्हें दोबारा ना देख सकी तो फिर मैं क्या करूंगी? मेरी औलाद क्या करेगी? हम कहाँ जाएंगे? शहजादी बहुत जुर्रतमंद है। जुर्रत बाज़ औक़ात हिमाकत बन जाती है। सबसे बेहतर था खतरे से दूर रहना, लेकिन शहजादे ने वहां जाकर खुद को खतरों में झोंक दिया है। मैं एक शहजादा हूं, सुल्तान सुलेमान खान का अफसर हूं मैं। अगर किसी ने मुझे छूने की कोशिश की तो उसे सजा जरूर मिलेगी। शहजादे मुस्तफा तशरीफ ला रहे हैं।
सामान तैयार करवाओ, यख पानी में लटाना होगा। यहाँ खड़ी क्या कर रहे हो? बर्फ लेकर आओ फौरन, जल्दी जल्दी। ये सब क्या हो रहा है फरत आगा? एक शहजादे के साथ आखिर ऐसा करने की कैसे जुर्रत कर सकते हैं आप लोग? माजरत शहजादे, लेकिन हमारे बहादुर ऐसा करने पर मजबूर कर दिए गए। शहजादे ने हमारे सामने आकर हम पर तलवार सौंप ली और हमसे हकारत का इजहार किया। मैं यहाँ बादशाह के नायब की हैसियत से आया था बिरादर। आका के हवाले से जो अफवाहें ज़ेरे गर्दिश है, मैं उन्हें खत्म करने की गर्ज से यहाँ आया था, लेकिन इन लोगों ने मौके से फायदा उठाकर मेरी जान लेने की कोशिश की। हरगिज नहीं, हमने तो वजह चाहे कुछ भी हो फरत आगा, किसकी जरूरत है कि एक शहजादे पर तलवार उठाए? शहजादे ने जहाज से हलचल मचाने वाली अफवाहें झूठी है। आका को मैंने बजाते खुद देखा है। अल्लाह का शुक्र है कि खतरे से बाहर है वो। आपका सिर्फ एक ही फर्ज है, अमन कायम रखना और इस खानदान की हिफाजत करना। इसके अलावा कोई भी फसाद हुआ तो याद रखना, मैं सबको कड़ी सजा दूंगा। ये हर कोई बखूबी जान ले। शहजादे मुस्तफा मोहतरम ने खुसूसी तदबीर से काम लिया है। वो भेस बदलकर सफर कर रहे थे। इसका क्या मतलब? उनके दिल में तीर लगा है ये लिखा था। मुझे भी ऐसा ही बताया गया था, लेकिन उन्होंने कोई चाल चली है पाशा। जिसे वो तीर लगा वो मुहाफिजों में से एक था। कौन था वो? अब्दुल्ला नहीं हो सकता, क्योंकि जब से आए हैं वो उनके साथ है। दाऊद था, शहजादे का लिबास पहना हुआ था, उनके घोड़े पर सवार था, उनकी तलवार उसके हाथ में थी। शहजादे मुस्तफा ने तख्त नशीन होने की ठान ली है लगता है। तीरंदाज को तलाश करो और उसका बंदोबस्त करो, गवाह नहीं बचना चाहिए। आपका जो हुक्म। पाशा, आतिश फिशा फट चुका है, कब्रें खोदी जा चुकी हैं, या उनमें हम जाएंगे या फिर शहजादे मुस्तफा। फरिश्ता रूह कब्ज करता है, तुम्हारी
तुम्हारी रूह कब कब्ज होगी सुलेमान? तुम्हारा मौत का फरिश्ता कब आएगा? तुम्हारी जिंदगी खत्म करेगा। तुम क्यों खौफजदा हो सुलेमान? सबसे ज्यादा किससे खौफजदा हो? तुम्हारी रूह में सरायत कर जाने वाला गुरूर और हिर्स तुम्हें खत्म करने के लिए काफी है। क्या तुम्हारी मौत तुम्हारी औलाद की जानिब से मुकर्रर किए गए जल्लादों के हाथों होगी? इंसान सबसे ज्यादा जिससे भी खौफजदा होता है वो ही उसकी मौत का फरिश्ता होता है सुलेमान। मेरे आका, निकाले जल्दी, कपड़ा लपेट दे। अल्लाह तेरा शुक्र है। हमारी जान आप पर फिदा हो। शहजादे मुस्तफा जिंदाबाद। शहजादे मुस्तफा मुस्तकबिल के बादशाह हैं। अल्लाह आपका रास्ता आसान करे, आपकी तलवार काटदार करे। तख्त पर बैठने के बाद हमें मत भूलिएगा। आखिरकार बुखार उतर गया मलिका। हकीम साहब, आका को जलाने वाला ये बुखार कब तक खत्म हो जाएगा? कुछ अरसा मजीद इंतजार करना होगा। एक दो दिन में बुखार ना हुआ तो सूरत हाल मामूल पर आना शुरू हो जाएगी। अच्छा, और पांव पर उभरने वाले जख्म जो है आपने कहा था वो ठीक होते जा रहे हैं? हमारे बनाए हुए मरहम से उनके जख्म काफी हद तक ठीक हो गए शहजादे। इस बुखार से किसी तरह निजात मिल जाए तो आका फिर से सेहतमंद होना शुरू हो जाएंगे। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। एक लम्हे के लिए भी आका को तन्हा मत छोड़िएगा। ऐसे हालात से हर कोई खौफजदा हो गया है, ऐसा ही ना मेहरमा? इसका क्या मतलब? शहजादे मुस्तफा इस बाइस के आका उन पर भरोसा नहीं करते, खौफजदा हैं। शहजादे सलीम मुस्तफा बरादर या बेआज़त के तख्त नशीन होने से डरते हैं क्योंकि जान तख्त से प्यारी है। शहजादे बेआज़त सिर्फ और सिर्फ इस खेल से बाहर होने से खौफजदा है। वालिदा हैं तो वो आका को और अपनी औलाद को खो देने से खौफजदा है।
تم سب سے زیادہ کس سے خوفزدہ ہو مہر؟ تم کو دوبارہ محل میں بلانے والی آخر کیا چیز ہے؟ تمہاری تنہائی ہے کیا؟ سب سے زیادہ تم تنہا رہنے سے خوفزدہ ہو. اور تم جہانگیر، تم بھی کسی چیز سے خوفزدہ نہیں ہو کیا؟ میرے خوف کا شمار نہیں، کیونکہ یہ تمام خوف میں ہر وقت محسوس کرتا ہوں. بعض راتوں کو یہ مجھ پر حاوی ہو جاتے ہیں، لیکن میرا سب سے بڑا خوف کون سا ہے اگر تم یہ پوچھو گی تو میں انسانوں سے خوفزدہ رہتا ہوں مہرما. دل سے، ضمیر سے، انصاف نہ کرنے والے انسانوں سے. کاش کہ ہم سب بھی ہمارے آقا کی طرح باہمت اور بے خوف ہو سکتے. سلیم کو اگر کچھ بھی ہو گیا تو میں ان سب کی دنیا برباد کر دوں گی. پریشان نہ ہو ملکہ، اگر کوئی ناخوشگوار حادثہ پیش آتا تو معلوم ہو جاتا. آپ نے مجھے آگاہ کیوں نہیں کیا والدہ؟ مجھے کیوں خبر نہیں کی؟ اور سلیم وہاں تنہا کیوں چلا گیا؟ مجھے بھی اس کے جانے کی بات ہی معلوم ہوا ہے. رستم نے اسے وہاں بھیج دیا. ویسے وہ خود کہاں ہے؟ جب بھی اس کی ضرورت پیش آتی ہے تو وہ غائب ہوتا ہے. میں جاتا ہوں سلیم کے پاس والدہ، انشاءاللہ اب بھی دیر نہیں ہوئی. نہیں، محل سے باہر قدم مت نکالنا. ویسے بھی شہزادے مصطفیٰ کو بھیجا ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی نیچروں کو نہیں روک سکتا. مصطفیٰ برادر کو؟ ملکہ، شہزادے سلیم کہاں ہیں وہ؟ شکر ہے کہ آ چکے ہیں وہ. شہزادے مصطفیٰ کے ہمراہ وہ محل میں تشریف لے آئے ہیں. اے میرے اللہ، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے. میں دیکھ کر آتا ہوں والدہ، آپ آرام کیجیے. شکر ہے. خطا صرف ان کی نہیں تھی، قابل قبول تھا. ان کے پاس جا کے تلوار نکالنے کی کیا ضرورت تھی؟ آج یہ معاملہ مجھے آپ کی وجہ سے ادھورا چھوڑنا پڑا برادر. یہ نیچروں کو اگر آپ سے ہمت نہیں مل رہی ہوتی تو وہ کبھی ایسا کرنے کی جرت نہیں کرتے. مجھے ہرگز دھمکی نہیں دیتے وہ. بس کرو سلیم، دوسروں پہ الزام لگانے کی ضرورت نہیں. کبھی تم اپنی خطا پر بھی غور کرو. امن قائم کرنے کے بجائے تم آگ کو ہوا دے رہے تھے. اگر میں وقت پہ نہیں پہنچتا تم اپنی جان سے ہاتھوں بیٹھتے، اور اب بحث کر رہے ہو. اس کا کیا مطلب ہے مصطفیٰ برادر؟ سلیم تمہیں ہر چیز کی تفصیل بتا دے گا. تم آقا کی خیریت بتاؤ، کیسے ہیں؟ بخار تیز ہو گیا تھا لیکن اب پہلے سے بہتر ہے. میں نے جو سنا وہ درست ہے سلیم. یعنی چروں نے تمہاری جان لینی چاہیے. وہ اس کی کیسے جرت کر سکتے ہیں؟ تم نہیں جانتے مصطفیٰ برادر تخت کے کتنے قریب ہیں؟ یہ نیچر بہت اچھی طرح جانتے ہیں. اسی وجہ سے انہیں شہ مل رہی ہے. وہ بخوبی سمجھتے ہیں انہیں کوئی سزا نہیں ملے گی، کیونکہ وہ ہر صورت بے قصور قرار پائیں گے. مصطفیٰ برادر تخت پر بیٹھ گئے تو سب سے پہلے فرحت آغا کی اور سب کی ترقی کی جائے گی، انعامات سے نوازا جائے گا. برادر مصطفیٰ مجھے بھی ان کے حوالے کر دیں گے، اور یقین کرو تمہیں بھی برادر. آپ کے جانے کے بعد بخار کافی تیز ہو گیا تھا. حکیموں کی کوششوں کے بعد شکر ہے کہ بخار میں اب کچھ کمی ہے. چند ہی روز میں ٹھیک ہو جائیں گے کہہ رہے ہیں. انشاءاللہ. انشاءاللہ. شہزادے سلیم صحیح سلامت محل پہنچ گئے. ہمارے درمیان اتنا کچھ ہونے کے باوجود یہاں آنے کے دوران میں بھی سازش کا شکار ہو کر اپنی جان گنوا دیتا، اور آپ اپنی اولاد کو کھو بیٹھتی. کیسی سازش؟ آپ کے اعتراف کی توقع نہیں ہے، پرسکون
गवाह है, मैंने आपके खिलाफ कोई साजिश नहीं की। आपको मैंने बुलवाया था क्योंकि इस ख्वाहिश का इजहार आका ने खुद किया था। इस दुश्वार वक्त में इन्हें आपकी भी जरूरत है। क्या वाकई ऐसा है? बिल्कुल। जो कुछ भी हुआ कतन इससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। सलीम को इस मुश्किल सूरत हाल से निकालकर आपने बहुत ही उम्दा काम किया है। आपको तारीफ और शुक्रिया करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने आपकी खातिर ये सब नहीं किया। सलीम मेरा बिरादर है। जानती हूं। तकदीर में ऐसी बातें होना भी लिखा था। मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहती थी मुस्तफा। किसी भी वक्त मेरी तरजीहात में शामिल ना था। किस्मत खेल रही है हमारे साथ। हम अगर चाहें भी तो यकजा नहीं हो सकते। आप एक तरफ हैं और मैं दूसरी तरफ। और अफसोस की बात है कि कोई एक सलामत रहेगा और दूसरा नजर क़यामत हो जाएगा। कितने दुख की बात है ये। आप और मैं मुस्तफा सिर्फ एक सूरत में एक साथ होते हैं, और वो ये कि काश आप मेरे बेटे होते तो हम इस खून खराबे में एक दूसरे के मुखालिफ नहीं होते। ऐसी सूरत में तुम वहां क्या करने गए थे? क्या ये दानिशमंदी का तकाजा है? रुस्तम पाशा, उसने मुझे जाने के लिए कहा। शायद मुझे आग में झोंकना चाहता था। तुम भी खुश हो जाती इससे। ब्याजत को किस कदर चाहती हो, उसकी कितनी हिमायत करती हो मैं जानता हूं। उसे भेजी जाने वाली दौलत का कोई हिसाब नहीं। ऐसे मुहीब और बेमायने ख्यालात को अपने दिमाग से निकाल दो। जितना ब्याजत अहम है उतने तुम भी हो। तुम दोनों को मैं बहुत चाहती हूँ। तुमने कब मुझसे कुछ मांगा और मैंने तुम्हें नहीं दिया, लेकिन तुम्हारी की गई खताओं पर आंखें बंद कर लूं, खामोश रहूंगी, इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं। अब ये बताओ कि तुम्हारे और ये नीचे के दरमियान क्या हुआ? अगर तुम सुनना चाहती हो तो बताता हूं महरमा। मैं आज मौत के रूबरू जा खड़ा हुआ था। सैकड़ों यनीचरों ने आज तलवारें तानकर मुझसे नफरत का इजहार किया। मैं समझ गया कि बचना मुश्किल है और मुझे अपनी मौत नजर आने लगी। हमारी जिद्दोजहद का कोई फायदा नहीं होगा महरमा। मुस्तफा बिरादर उन सबकी नजरों में बादशाह बन चुके हैं। फिर आखिर तुम महल में तशरीफ ले ही आए रुस्तम पाशा। मलिका, अपनी हद से तजावज कर चुके हो तुम, और वो भी कुछ ज्यादा ही। ये क्या कह रही हैं? मैं क्या कह रही हूँ ये बात तुम अच्छी तरह से जानते हो रुस्तम पाशा। शहजादे सलीम को मेरी रजामंदी के बगैर यनीचरों के पास भेज दिया तुमने। मलिका, आप दुख और इस्तराब की कैफियत में आका के पास थी, इसलिए मैंने ये तनहा फैसला किया। ये दुरुस्त है, लेकिन मैं इस पर बेहद मजबूर था।
इसके अलावा तदबीर करने के लिए मुझे आप ही ने कहा था। तुम शहजादे को मौत के मुंह में धकेला कहते हैं उससे? अगर आपके दिल में तख्त के लिए नामजद होने वाले शहजादे सलीम हैं तो वो अपने इस हक को साबित करें, मैंने यही सोचा। मेरा ख्याल था वो जुर्रत से काम लेंगे। आशा, क्या ये तुम्हारा काम है कि तुम शहजादे की जुर्रत की पैमाइश करो? और सिर्फ यही नहीं, मुस्तफा के खिलाफ भी साजिश की है तुमने। वो निहायत कामयाब हमला था मलिका, लेकिन उन्होंने अपने एक मुहाफिज को शहजादे का लिबास पहनाया हुआ था, बस यही बात थी। दरअसल तुमने हर बात तय कर ली थी कि शहजादा मुस्तफा हमले में मारा जाएगा और शहजादा सलीम जनीचरों के हाथों, और इस तरह बयासत के रकीब खत्म हो जाएंगे, यही ना? आखिर तुम किस जुर्रत से अपनी मनमानी करते फिर रहे हो रुस्तम पाशा? हम सब एक ही कश्ती के सवार हैं मलिका, और वो कश्ती तेजी से चट्टानों के दरमियान से गुजर रही है। किसी न किसी को तो वो कश्ती बचानी पड़ेगी मलिका। पाशा, अपनी समात वाह करो और मुझे अच्छी तरह से सुनो, क्योंकि मैं दूसरी मर्तबा नहीं कहूंगी। मुझ में जब तक सांसें मौजूद रहेंगी वो कश्ती का चप्पू सिर्फ मेरे ही हाथों में रहेगा, और जो मेरे खिलाफ जाएगा खुद को समंदर की तह में पाएगा। अफसोस है मलिका, अब कश्ती का चप्पू शहजादे मुस्तफा के हाथ में आ चुका है। अब वो निहायत आसानी के साथ विराजमान हो जाएंगे तख्त पर, और बाद में दीगर शहजादगान के हमराह वो हम सबकी तकदीर का फैसला करेंगे। आका, खतरे से बाहर है, खुदा का शुक्र है। जल्दी ही अपने कदमों पर खड़े हो जाएंगे और ये भयानक दिन बहुत जल्द खत्म हो जाएंगे। अनकरीब खून बहने वाला है। ये क्या है? जालिम महमूद ने निहायत ज़ूद असर जहर कर दिया है। एक ही लम्हे में सांस रोक देता है। मैंने ये अपने लिए रखा है। जल्लाद जिस वक्त मेरे दरवाजे पर आएंगे उस वक्त पीने के लिए। पूरब सुल्तान के पास भी है, उन्होंने अपने लिए और शहजाद खान के लिए अपने पास रखा है। रुस्तम, परेशान ना हो, फिलहाल मैंने हथियार नहीं फेंके। आखिरी लम्हे तक हाथ में तलवार लेकर शहजादे प्यासत की हिफाजत करता रहूंगा, लेकिन ये सब कुछ खत्म करने का रास्ता भी मौजूद है। क्या है बताओ मुझे। एक तरफ शहजादे मुस्तफा की जान है और दूसरी तरफ वालिदा की, बिरादरान सलीम, प्यासत, जहांगीर की जान है। मैं किसी से बात नहीं करना चाहता नूर बानो। क्या मुझसे भी? वालिदा, तुमसे जो कहा था क्या वो याद है तुम्हें? आज के बाद तुम अकेले नहीं होगे मेरे बिस्तर, तुम्हारी कुछ पर मैं हूं। ये एक इम्तिहान है सलीम, हर किसी के लिए। मुस्तकिल मिजाजी का, सर ना झुकाने का, बगावत ना करने का और सब पर गालिब आ जाने का इम्तिहान। ऐसे हालात में कोई भी शख्स यानीचरों के पास जाने की हिम्मत तक नहीं कर सकता, लेकिन तुम वहां गए और मुझे पूरा यकीन है कि एक दिन सिर्फ तुम ही ये अजीम सल्तनत संभालोगे मेरे बहादुर शहजादे। वहां जो पेश आया वो नहीं जानती वालिदा। हर कोई मेरा मजाक उड़ा रहा था, मुझे बुज़दिल कह के मेरे खिलाफ बातें बनाई जा रही थी। मेरे हवाले से भी बातें बनाई गई थी जिनका इजहार नहीं कर सकती, ऐसे फिक्रे कहे गए थे। जादूगरनी कहा, चुड़ैल कहा मुझे। मेरे सर के पीछे भी एक आंख है, यहां तक कहा जो मैंने खुद सुना था। अगर मैं इन सब बातों को दिल पे लगा लेती
आज इस जहां की मलिका हरगिज़ नहीं होती। खुद को मनवाने के लिए बरसों लग गए। मुझ पर जो झूठे इल्जामात आयद किए गए उन्हें मिटाने में मसरूफ रही। फलाही इदारा बनवाया, यतीम खाना कायम करवाया, मैंने मस्जिद बनवाई, जितने भी जरूरतमंद थे उनकी मदद की मैंने, और बिल आखिर कामयाब हो गई। अब लोग मुझे पसंद करते हैं, दुआएं देते हैं, खास तौर पर बच्चे, बूढ़े और खवातीन। मैं एक जादूगरनी नहीं हूं, ये बात सबने जान ली। मेरा सिर्फ एक ही मकसद था, अपनी औलादों की हिफाजत करना, और ये बात साबित कर दी मैंने। और तुमने भी वहां जाकर कारनामा अंजाम दिया है मेरे पिसर। यकीन करना, इससे मुस्बत तब्दीली आएगी, कम से कम तुम्हारे अंदर। इसके अलावा ये कतन मत भूलना कि सिर्फ जुनूनी लोग ही खौफज़दा नहीं होते। मलिका, मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ। मुझे यकीन है कि आपकी बातों से बहुत असर होगा। इंशाल्लाह नूर बानो, मेरे पिसर को तन्हा मत छोड़ना। आप फिक्र ना करें, हर वक्त इनका ख्याल रखूंगी। मलिका, इस मुश्किल वक्त में अल्लाह हमारी मदद करेगा। अगर मेरे लिए कोई खिदमत हो तो मैं हाजिर हूँ आपका हुक्म बजा लाने के लिए। बादब, मलिका माहिदोरा सुल्तान तशरीफ ला रही हैं। खुश आमदीद मलिका। शुक्रिया गुलफाम। मुझे जैसे ही खबर मिली मैं इस कूबे से फौरन रवाना हो गई। आका कैसे हैं? आफियत से होंगे इंशाल्लाह। हकीम पूरी कोशिश कर रहे हैं, इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। खैरियत रहेगी गुलफाम। अगर चाहे तो आका के पास चलते हैं। शहजादे और फातिमा सुल्तान आपका वहीं इंतजार कर रहे हैं। आला। सबके सब बारी बारी यहाँ आ गए हैं। बीमारी के बहाने ये लोग आका के सर पर मंडला रहे हैं। आप फिक्र ना करें मलिका, आका को एक लम्हे के लिए भी हम अकेला नहीं छोड़ रहे। शहजादी। वालिदा। शहजादी। खुश आमदीद माहिदोरा, हम तुम्हारे ही मुंतज़िर थे। देख रही हो तुम हमारी हालत। बुरा वक्त किसी भी तरह गुजरने का नाम ही नहीं ले रहा। इंशाल्लाह गुजर जाएगा शहजादी। सूरज जरूर तुलू होगा। मेहरमा, तुम कैसी हो? वो सूरज कौन होगा मलिका? क्या बिरादर मुस्तफा? क्योंकि आप आका की खातिर हरगिज़ अफसरदा नहीं है, मैं जानती हूँ। मेहरमा, तुम अपनी हद में रहो। माहिदौरा सुल्तान को समझती हूँ। आखिर बरसों से उन्हें इस लम्हे का इंतजार था। और आप शहजादे फातिमा सुल्तान, आपको क्या हो गया? दुआ करने के बजाय दिन गिन रहे हैं आप लोग। किस चीज के लिए दिन गिन रहे हैं हम लोग? कैसा घिनौना इल्जाम लगा रही हो तुम? ये झूठ है क्या? क्या आप सब यही नहीं चाहते? क्या ऐसी चीज की ख्वाहिश नहीं रखते आप लोग? हर जबान पर आपका नाम है। बेशर्मी से, बेगैरती से
आपको मुस्तकबिल का बादशाह कह रहे हैं, तख्त पर आपको बिठाना चाहते हैं। आप खामोश हैं क्योंकि आप भी यही सब कुछ चाहते हैं। बस करो महरमा, अपनी माँ जैसी गुफ्तगू बंद करो। अब खुद को इस महल का मुख्तार समझ रहे हो तुम लोग, और जो तुम्हारा हम ख्याल नहीं है उसे अपना दुश्मन करार देकर इल्जाम लगा देते हो। अगर वाकई तुम्हें हकीकत की तलाश है तो अपने चहीते खावन से पूछो, अपनी वालिदा से पूछो कि किस तरह मुस्तफा को उन्होंने साजिश के जरिए मारने की कोशिश की। ऐसा ही हुआ होगा। जब कोई नहीं था तब मैं थी आका के पास। हम एक छत तले पले बढ़े। इनसे मेरी मोहब्बत और वफादारी अबदी है। मुस्तफा भी ऐसा ही है। हम में से कोई भी ये इल्जाम साबित करने पर मजबूर नहीं है। यकीन करना चाहती हो तो कर लो। मुझे सिर्फ एक ही बात पर यकीन है, और वो ये कि आका फिर से अपने कदमों पर खड़े हो जाएंगे और जवाब मांगेंगे इन सब बातों का। रहने दो, जाने दो। अब वक्त आ चुका है कि हुरम सुल्तान को उसकी औकात याद दिलाई जाए। जनीचर वाले उस हादसे को तुम किसी भी तरह से ना रोक पाए सोकुल्लू। तुम्हें वहां बेसबब भेजा था क्या? मैंने अपनी पूरी कोशिश की थी पाशा मोहतरम, लेकिन मैं आपसे कह चुका हूं वहां जाना संगीन खता थी। मेरे फैसलों पर कब से तनकीद करने लगे हो तुम सोकुल्लू? हरगिज़ नहीं पाशा। शहजादे सलीम और हुरम सुल्तान के करीब होने की कोशिश कर रहे हो, मुझे एहसास है। तुम्हारी जुर्रत की वजह भी यही है। लेकिन याद रखना, इस महल में आका के बाद किसी की हैसियत है तो वो मेरी है। कतन ये बात अकल से ना निकालना। मैं आपके लिए रंजीदा होना और रोना चाहती हूँ, लेकिन मेरे साथ और मेरी औलाद के साथ जो कुछ किया उसकी बात मैं चाहूं भी तो नहीं रो सकती। वालिदा की ताकत का हर किसी को मालूम है, उस पर उनका असर है। लेकिन महरमा को अपनी खता का एहसास होगा। वो बहुत जल्द आपसे माफी मांगेगी। कितनी फतूहात हासिल की, कितनी रियासतें फतह की, 3 बरे आजम पांव तले रौंद डाले। मतलब कि आपको ऐसा कमजोर और लाचार देखना हमारी किस्मत में था शायद। एक रूसी जादूगरनी की वजह से मुझे अपने इकलौते और बेशकीमत बेटे मुस्तफा को खुद से अलग कर दिया। देखिए, अब आप कुछ भी नहीं कर सकते। मैं आपके लिए रंजीदा होना और रोना चाहती हूँ, लेकिन मेरे साथ और मेरी औलाद के साथ जो कुछ किया उसकी बात मैं चाहूं भी तो नहीं रो सकती। आपके लिए सिर्फ एक ही दुआ है मेरी, आप सुकून से मर जाएं। क्योंकि हर किसी के लिए यही बेहतर है, आपके लिए भी।
सियाह लिबास में आई हो? जनाजे में शिरकत की हवस है लगता है, लेकिन तुम्हारे ख्वाब चकनाचूर हो जाएंगे माहिदौरा, क्योंकि आका जल्द ही अपने कदमों पर खड़े हो जाएंगे, अपनी आंखें फिर से वाह कर देंगे, पहले से भी ज्यादा वो ताकतवर हो जाएंगे। मैं बरसों से इंतजार कर रही हूँ उमरों, मजीद कुछ इंतजार कर लूंगी। आज या कल हकदार को उसका हक मिल जाएगा। आका को इस हाल तक पहुंचाने में तुम्हारा हाथ है। अपने गुनाहों में उन्हें भी शामिल कर लिया, अब वो उसका बदला चुका रहे हैं। हकीकी गुनाहगारों को अभी तक नजरे आतिश नहीं किया गया है। उन्हें इस तरह जलाया जाएगा कि उनकी राख हर तरफ उड़ती नजर आएगी। सिर्फ एक सांस होरम, सिर्फ एक सांस दूर हो तुम अपने अंजाम से। अतराफ का जायजा लो, मौत के खौफ से लरसता हुआ सिर्फ रुस्तम ही रह गया है तुम्हारे पास। तुम्हारी औलादों ने भी तुम्हारा साथ छोड़ दिया है। प्यासत मुस्तफा के साथ है और जहांगीर भी ऐसा ही है, क्योंकि वो हकीकत जान चुके हैं। वो सच्चाई और हकदार के साथ आ मिले हैं। अल्लाह जानता है आका की सेहत की ख्वाहिश मुझे बदिलो-जां से है। इसके बावजूद महरमा की बातों से मुझे शदीद सदमा पहुंचा है। मुझे उससे हरगिज ये उम्मीद नहीं थी। आपकी कोई खता नहीं है ब्रादर। आका की हालत और इस सूरत हाल से काफी परेशान है। हर किसी के आसाब खस्ता है। दुरुस्त कहते हो। दरअसल वालिदा से वो बहुत अरसे बाद मिली है। माजरत बिरादर, मैंने बिला सोचे समझे कह दिया। मैं उस पर तनकीद नहीं करना चाहता। वालिदा की ताकत का हर किसी को मालूम है, उस पर उनका असर है, लेकिन महरमा को अपनी खता का एहसास होगा। वो बहुत जल्द आपसे माफी मांगेगी। मैं भी यही चाहता हूं। पाशा मोहतरम, ये बताओ आका की तबीयत में कोई बेहतरी आई है क्या महमूद? बिल्कुल नहीं पाशा। पाशा, क्रोशिया से सिनान साहब आए हैं, आपसे मुलाकात करना चाहते हैं। रात के इस वक्त उसकी आमद का मकसद क्या है? किसकी इजाजत से आया है वो यहाँ पर? कोई मालूमात नहीं है पाशा मोहतरम। आपसे मुलाकात करना चाहते हैं, शायद कोई अहम मसला है। इतनी परेशानियों के बावजूद क्रोशिया की मसाइल सुनने की ताब मुझ में नहीं। वापस भेज दो। आपका जो हुक्म। सिनान साहब, पाशा मोहतरम मसरूफ हैं, आप बाद में तशरीफ ले आए। अहम मसला ये बताया उन्हें? अच्छा, फिर मैं इंतजार करता हूं। बादब शहजादे मुस्तफा मोहतरम तशरीफ ला रहे हैं। खुश आमदीद। तुम्हारा शुक्रिया। तुमने जो गुफ्तगू की मुझे उससे रंज पहुंचा महरमा। मुश्किल वक्त से दो चार हो तुम, लेकिन हम भी इसी कैफियत से गुजर रहे हैं। ये उलझने और झगड़ा करने का वक्त नहीं है, बल्कि हम सबके यकजा होने का वक्त है। क्या मुमकिन है शहजादे? या नीचर के दिल में आपके लिए जो मोहब्बत है, उसी मोहब्बत की वजह से मेरे बिरादर पर तलवार उठाई गई, इसके बावजूद क्या ये मुमकिन है?
मेरे खिलाफ हो गई हो तुम। बरसों से हम ये समझ रहे थे कि ये मसला है ही नहीं, लेकिन वो दिन अब आ चुका है। आप जो ख्वाब देख रहे थे उसकी ताबीर करीब है। मसला अगर तख्त का ही है तो हाँ, ये दुरुस्त है। हर शहजादे की तरह मेरा भी एक ख्वाब है। मैं इसीलिए पैदा हुआ हूं मेहरमा। मेरे होने का सबब यही है। बरसों से के लिए मुझे तरबियत दी गई है, इसलिए मैं तख्त नशीनी का हकदार हूं। पाशा मोहतरम, इजाजत दें, आपसे अहम बात करनी है। क्रोशिया के वही सिनान साहब पाशा। ये इंतजार क्यों कर रहा है? इसे वापस भेज दो। वजीर आजम मोहतरम, बोरिस। मैं हूं बोरिस। अभी क्या कहा तुमने? कहां से सुना है तुमने ये नाम? बोरिस। बरसों बुतमीर में आपकी पैदाइश के बाद आपके बाबा का रखा हुआ नाम है, क्यों है ना? मकसद क्या है तुम्हारा, ये बताओ। वैसे भी ये हर कोई जानता है। मैं क्रोएशिया से आपकी खातिर आया हूं और आपके हमरा एक ही घर में पैदा हुआ। तुम्हारा भाई आंदरो। सब तय हो चुका है ना? मेरे वालिदा के रुस्तम के मुतालिक हुक्म दिया जा चुका है ना? अच्छा, और दूसरे, उनका क्या होगा? ये ऐसी बातें करने का वक्त नहीं है। इनके कोई मायने नहीं। मायने हैं, क्योंकि मसला मेरे बिरादरान की जिंदगी का है। वो मेरे भी बिरादरान है। अगर तख्त नसीब हुआ तो जहांगीर मेरे साथ होगा, ब्याजत सरोहान रियासत का सूबेदार होगा। अभी तो आप कह रहे थे कि ये वक्त नहीं है इन बातों का, लेकिन आपने तो सारा हिसाब किताब कर लिया है। ये कोई नई चीज नहीं है मेहरमा। उन दोनों से पहले ही बात हो चुकी है। सलीम का क्या होगा आखिर? क्या उससे भी बात हो चुकी है? पायतख्त से दूर एक रियासत में सुकून से रहने का बंदोबस्त कर दूंगा। हाँ, अगर तलवार लेकर मेरे सामने खड़ा ना हुआ तो। मेरे बिरादरान को आप इस तरह धोखा दे सकते हैं, लेकिन ये बात हम दोनों जानते हैं, मुमकिन नहीं है। ये ऐसा कभी नहीं हो सकता। अपने लफ्जों पर गौर करो मेहरमा। मैं किसी को धोखा नहीं दे रहा। अल्लाह गवाह है, मैं अपने दिए गए कौल पर साबित कदम रहूंगा। काश कि मैं यकीन कर सकती आप पर। कबूल कर लें कि आपकी सलामती हमारे लिए कयामत खेज होगी। ये तुम्हारी वालिदा के अल्फाज हैं। ये आंखें भी उनकी हैं। जो भी कह लूं कोई फायदा नहीं, हकीकत नहीं बदलेगी। तुम हुरम सुल्तान की दोहतर हो।
सुलेमान, अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। सुलेमान, कितने अरसे से मेरा ये हाल है हुरम? सफर से वापसी को पूरे 3 महीने गुजर गए हैं। पिछले 2 हफ्ते तो भयानक ख्वाब की तरह गुजरे हैं। बुखार में चलते रहे आप। मेरी गैर मौजूदगी में क्या हुआ मेरे जानने के लिए कोई अहम मसला है क्या? ये इन बातों का वक्त नहीं है सुलेमान। आराम कीजिए ताकि आपकी सेहत बेहतर हो जाए। लुकमान आगा, मेरे आका। हकीम साहब को बुलवाओ। मुस्तफा बिरादर यहाँ आए थे रुस्तम। उनके जहन में जो था बारी बारी सब बता दिया। बिरादरान की जान नहीं लेंगे ये कह रहे थे। तुम्हारे ख्याल में ये मुमकिन है? वो अपने वादे पर कायम रहेंगे क्या? रुस्तम, क्या हुआ है तुम्हें? क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो? मैं बहुत थका हुआ हूं, सोना चाहता हूं। आओ। माजरत पाशा मोहतरम, बेआराम कर रहा हूं। महल से खबर आई है। खुशखबरी है शहजादी, आका अपने होश में आ गए हैं। वो सेहतयाब हो गए हैं पाशा। अल्लाह तो बहुत अजीम है। रुस्तम, सुना तुमने? बाबा ठीक हो गए। कई दिनों से परेशान हाल थे हम। आपके लिए दुआ मांगने के सिवा कोई चारा ना था हमारे पास। लेकिन शुक्र है कि हमारे रब ने सुन ली हमारी दुआ और आपको हम सब के लिए बख्श दिया। मुझे एहसास है और तुम्हारी मौजूदगी महसूस करता था मैं। मुझे जैसे ही खबर मिली मैं पहुंच गई थी आका। अल्लाह आपको हम सब पर सलामत रखे। हमने बहुत अज़ियत झेली है आका। जहन्नम का अज़ाब झेलना पड़ा। शुक्र है कि बुरे दिन टल ही गए। ऐसा ही है ना मेहरमा? जहन्नुम की आग बुझ चुकी है। खुशियां और चाहतें हमेशा कायम रहे। दुनिया में 4 जानिब कासिद रवाना करने चाहिए। ढोल बजवाएं ताकि दोस्त दुश्मन सब आका की सेहतयाबी के बारे में जान लें। फिर से सेहतमंद देखकर मुझे बेहद खुशी हो रही है। मेरा रब आपको तवील उम्र अता फरमाए। ब्याजत, जहांगीर, मुस्तफा बिरादर समेत तुम सबके ख्वाब चकनाचूर हो गए। देखता हूं अब क्या करते हो तुम लोग। मैं अभी बताता हूं तुम्हें क्या करूंगा। शहजादे, ऐसे खास मौके पर आपको झगड़ा करना बिल्कुल जेब नहीं देता।
अंदाजे भी गलत साबित हो गए। तुम ब्याजत की खातिर रास्ता साफ कर रहे थे, लेकिन आका ने ये खेल खराब कर दिया। पाशा मोहतरम, आका आपके मुंतजर हैं। क्या तुम सारा वक्त मेरे पास रहती थी? आपको किसी और की अमानत में नहीं सौंप सकती। आज जब तुम सुकून और इत्मीनान की नींद सो जाओ, तुम भी मेहरमा। मैं खुद को संभाल लूंगा, अल्लाह ने चाहा तो। इंशाअल्लाह। आओ। मेरे आका, मैं जल्द पैरों पे खड़ा हो जाऊंगा रुस्तम। इंशाअल्लाह, हम सबकी भी यही ख्वाहिश है। नमाज जुमा में शामिल होना चाहता हूं। नमाज अपने मरहूम पे सिर से मंसूब मस्जिद में पढ़ूंगा, उसी लिहाज से तैयारी की जाए। कतई नहीं जा सकते आका, पहले ठीक हो जाए फिर चले जाइएगा आप। फैसला अटल है हुरम, मुझे फौरन महल से बाहर जाने की जरूरत है। दोस्त दुश्मन देख लें कि मैं जिंदा हूं, पानी कहीं सर से ऊंचा ना हो जाए। आप बजा फरमाते हैं आका, मैं हिफाजती तदबीर कर लूंगा। आला, इसके अलावा मैं सब लोगों से मिलना चाहूंगा। पाशा हजरात, शहजादगान और शहजादियां। देखता हूं जब मैं बेहोश था तो क्या होता रहा दुनिया में। मैं हूं बारगाली इब्राहिम, अंधेरे का साया हमेशा मेरे करीब रहता है। सुल्तान सुलेमान वो बैक वक्त मौत का हुक्म देने वाले और मेरे निजात दहिंदा है। मेरी किस्मत और मेरी बदकिस्मती कि उनके करीब रहते हुए मुझे मौत का एहसास नहीं होता। लगता है मौत का साया मुझसे दूर चला गया। बाज रातों को जब मैं नींद के लिए आंखें बंद करता हूं, तब मैं एक लम्हे के लिए सोचता हूं, मौत जब मेरे दर पर दस्तक देगी तो उसी लम्हे मेरे बदन से रूह परवाज कर जाएगी। उसी दौरान मेरे जहन में एक ख्याल उभरता है। मेरी दाढ़ी और सर के बालों से एक सफेद बाल झांकता है। मेरे चाहने वाले, खजीना, मेरे तिफ्ल, मेरे आका सब अपनी जगह मौजूद हैं। वक्त गुजर चुका, हिसाब का दिन मुतय्यन है, ना ही पहले ना ही बाद में। पाशा क्रोशिया के सिनान साहब आए हैं, अंदर भेज दो। पाशा मोहतरम, तुम्हारे बारे में तहकीकात करवा चुका हूं। जैसा तुमने कहा था, तुम क्रोशिया से ताल्लुक रखते हो। आज से 28 साल पहले, यानी मेरी आमद के 5 साल बाद तुम पाए तख्त आ गए थे। गालाता महल से तुम इंद्रोन में दाखिल हुए।
मेरी मालूमात के मुताबिक तुम्हारा जो ताल्लुक बताया जाता है वो बुतुमीर से है और तुम्हारा नाम इस्लाम कबूल करने के बाद से सनान यूसुफ रख दिया गया था। ये दुरुस्त है पाशा मोहतरम, लेकिन इसके अलावा कोई खास बात नहीं। मेरे गांव से ताल्लुक रखने वाले कई लोग पाशा और सूबेदार बन चुके हैं। क्या मालूम कि तुम मेरे ब्रदर हो कि नहीं? कैसे यकीन करूं तुम पर? अच्छी तरह तलाश करवा लिया लेकिन तुम्हारा असली नाम नहीं मिला। मेरे असली नाम से मुताल्लिक कागजात जरूर कहीं मौजूद होंगे पाशा मोहतरम। मुझे अफसोस है वो कागजात मेरे पास मौजूद नहीं। इसके अलावा माजी से मुंसलिक हर चीज धुंधला गई है मेरे जहन में, सिर्फ एक चीज के अलावा। जिस दिन आपने हमें छोड़ा, आपने हम लोगों से एक वादा किया था, मुझसे और मेरी बहन सोफिया से। क्या याद आया आपको वो दिन? आपने कहा था आप एक दिन लौट कर आएंगे। हमें अकेला नहीं छोड़ेंगे। हमने आपका इंतजार किया बोरिस, और बहुत ज्यादा। जरूर वापिस आऊंगा। हमसे वादा करो बोरिस कि तुम आओगे। मैं वादा करता हूँ आंद्रो, जरूर वापस आऊंगा। तुम लोगों को यहाँ अकेला नहीं छोड़ूंगा। आपके बाद वो मुझे भी लेकर चले गए। कई बरस में दीगर बच्चों के साथ रहा। मैं अपनी बहन सोफिया को भी तना छोड़ाया था। आपको तलाश किया, नाउम्मीद हुए बगैर आपको तलाश करता रहा। आपको एक निशानी दिखाता हूं ताकि आपको यकीन आ जाए। सोफिया, सूफिया न जाने कहां चली गई, मालूम ना हो सका। उसका कोई नामो निशान नहीं मिला। आपके मिलने की भी उम्मीद हार चुका था, लेकिन मालूम हुआ सुल्तान सुलेमान खान के वजीर आजम भी क्रोएशिया से ताल्लुक रखते हैं। उन्हें जानवर पालने वाले का बेटा कहा जाता है। यहां क्यों आए हो तुम? इतने बरसों बाद मुझे तलाश करने का मकसद क्या है? मैं यहां सिर्फ आपसे मिलना चाहता था बोरिस। अपने ब्रदर को देखना चाहता था। इतने बरसों तक हमारी मुलाकात नहीं हो सकी। आप वापस क्यों नहीं आए? क्यों हमें वहां पे अकेला छोड़ दिया था, पूछना चाहता था। मैं मजीद कुछ रोज यहीं रहूंगा। अगर आप मुझसे मिलना चाहेंगे तो आपके लोग आपको मुझ तक पहुंचा देंगे। पाशा मोहतरम, तखलिया। कहो हुरम, मेरी बीमारी के दौरान क्या होता रहा, कैसे हालात थे? शहजादे मुस्तफा की मदद करने वाले सूबेदार, रईसान और उल्मा सब के सब आपस में यकजा हो चुके हैं उसे तख्त पर बैठाने के लिए। कसम खाई हुई है उन सब ने।
ان کی پشت پناہی کون کر رہا ہے مجھے نہیں معلوم، لیکن ایک منظم طاقت کے مالک ہیں یہ آشکار ہے۔ آپ کی بے ہوشی سے فائدہ اٹھا کر بغاوت کرنے کی کوشش کی، سلیم کی جان لینے والے تھے ظالم۔ رستم پاشا نے آقا سلطنت کے نائب کی حیثیت سے مجھے ینیچروں کے پاس جانے اور سپاہ پر قابو رکھنے کا مشورہ دیا تھا۔ مجھے بھی معقول معلوم ہوا، میں ان کے پاس گیا اور انہیں اس بات کا یقین دلایا کہ آپ پوری طرح سے صحت یاب ہیں، لیکن انہوں نے مجھے قتل کرنے کی کوشش کی آقا۔ سلیم ینیچروں کے پاس کیا یہ معلوم ہوتے ہی میں فوراً وہاں پہنچ گیا۔ وہاں پہنچ کر میں نے دیکھا کہ حالات خطرناک صورتحال اختیار کر چکے ہیں۔ آپ جانتے ہیں ہر جگہ افواہوں کا آزار گرم تھا۔ ایسے وقت حالات ناساز ہوتے ہیں اور بغاوت کا خطرہ رہتا ہے۔ میں نے خود ان سے بات کی اور حالات پر قابو پایا۔ ہمیں کیوں جمع کیا گیا ہے آغا؟ کیوں ہم نماز جمعہ کے لیے نہیں گئے؟ آقا نے یہیں پر رہنے کا حکم فرمایا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ آقا شہزادے سلیم سے گستاخی کا حساب ہم سے پوچھنے کے لیے آئیں گے کیا؟ اگر ایسا کوئی مقصد ہوتا تو ہم سے ملاقات کے لیے نہیں آتے کبھی۔ اطمینان رکھو۔ خدا کا شکر ہے کہ آقا صحت یاب ہو گئے۔ آغا اشرفیہ تقسیم کرو۔ ہم سب کے لیے خوشی کا موقع ہے خرم۔ خدا کا شکر ہے کہ آقا کی بیماری ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی ہے۔ شکر ہے خدا کا شہزادی۔ ویسے ختم کرنے کے لیے لگتا ہے ابھی بہت سی بلائیں باقی ہیں۔ آقا کے سر پر مسلط سب سے بڑی بلا تو تم خود ہو خرم، لیکن افسوس کے ساتھ جانتے ہوئے بھی وہ تمہیں برداشت کر رہے ہیں۔ اپنی روانگی کی تیاری کر لو تو بہتر ہوگا۔ اب جبکہ آقا صحت مند ہو چکے ہیں تو تمہیں اپنے پسر کے ساتھ امسیا جانے کی ضرورت ہوگی۔ معلوم ہی ہے ریاست خالی نہیں چھوڑی جا سکتی۔ خرم، بادب بادشاہ دورہ فاتح جہاں سلطان بعض اوقات
नींद से बेदार होकर उठती हूँ और आका के कमरे की तरफ जाती हूँ। क्यों, क्या ये जानते हो तुम रुस्तम? ये यकीन करने के लिए कि वो सांसें ले रहे हैं। इस बात पे यकीन करने के बाद ही नींद आती है। आप बेसबब परेशान रहती हैं मलिका। आका का जो बीमारी थी अब उसकी कोई भी अलामत बाकी नहीं बची है। अल्लाह उनका साया हम पर कायम रखे हमेशा। आमीन आमीन। आका की बेहोशी के दौरान जो कुछ भी होता रहा वो सब जान गए। शहजादे मुस्तफा अपनी यकीनी फतह के करीब पहुंच गए थे, अब भी ऐसा ही है। शहजादे सलीम और शहजादे ब्यासत अगर यकजा हो भी जाएं तो उन्हें जेर करना मुश्किल है। मैं वो बुरे दिन भूलना चाहती हूँ, वो भयानक ख्वाब दोबारा नहीं देखना चाहती। एक तरीका है मेरे पास। आपके जहन में क्या है मलिका? तख्त दोबारा संभालने के बाद से आका की अहले अजम के साथ जंग की सूरत हाल का मैंने खुद जायजा लिया। यह आखिरी जंग थी, तुम जानते हो। दयार अजम आका के लिए नाकाबिल फरामोश सबक है। ऐसा सबक के फतह के लिए तहमास के बिरादर एलकास के लिए भी उन्होंने अपने दरवाजे खोल दिए, हत्ता कि उसे बहनोई बना लेते। मुख्तसर ये कि आका को शाह तहमास से जितनी नफरत है उतनी किसी और से नहीं। अगर शहजादे मुस्तफा का शाह से करीबी ताल्लुक साबित किया जाए और खबर आका की समात तक पहुंच जाए तो उसका अंजाम बिल्कुल यकीनी होगा। एलकास मिर्जा का जैसा अंजाम हुआ वैसा ही होगा, ये कहना चाहती हैं आप? बिल्कुल। तहमास ने जिस तरह अपने ब्रादर एलकास को माफ नहीं किया, आका भी मुस्तफा को कभी माफ नहीं करेंगे। शहजादे मुस्तफा का शाह तहमास से इस तरह का कोई ताल्लुक जाहिर करना मुमकिन नजर नहीं आता। वो नहीं बनाएगा, उसका नाम इस्तेमाल करके हम बनाएंगे ये ताल्लुक। आका को ये सब मालूम हो जाए काफी है। ये एक शानदार साजिश होगी मलिका, लेकिन इसके लिए एक मकतूब भी काफी नहीं होगा। हर तरफ बेशुमार छोटे मकतूबात बिखरे हुए हैं, ये तो आप जानती हैं। उनका इस बात पे यकीन करना बुनियादी शर्त होगी। हमें साजगार हवा चाहिए ताकि सफर कर सके। सफर आजम से वापस आए हुए 4 साल हो गए, अब दोबारा जाना मुमकिन नहीं मिलेगा। तुम्हारी जहानत की शहजादे मुस्तफा के महल में किसी को दाखिल करवाना होगा, लेकिन ये मुमकिन दिखाई नहीं दे रहा मलिका। वो बहुत बड़ा महल है, जरूर कोई ना कोई हमारे काम का शख्स निकल आएगा। अच्छी तरह तहकीकात करो। वहां पर चंद ही लोग मौजूद हैं, माहे दौरा सुल्तान, महरुन्निसा सुल्तान, तर्जी अली याह्या, फिदान खातून और अब्दुल्ला। ये लोग किसी सूरत गद्दारी नहीं कर सकते। सारी मेहनत जाया हो जाएगी क्या? मेरे आने से पहले भी क्या आप लोग यूं ही खामोश खड़े थे? कोई अहम बात नहीं कहनी तो हमें तन्हा छोड़ दो। मुस्तफा बिरादर के मुतालिक बात कर रहे थे। मुझसे कोई चीज छुपाने की जरूरत नहीं, जानती हूँ कि आप दोनों के इरादे क्या हैं। जो भी जानती हो भूल जाओ मेहरमा। तुम सिर्फ अपनी औलाद पे तवज्जो दोगी और इन मामलात से कतई दूर रहने की कोशिश करो। मैं आपकी मदद करना चाहती थी वालिदा। महरमा, मेरी खुर्शीद और महताब, माशाअल्लाह तुम बहुत प्यारी हो गई हो। आखिर मैं हुरम सुल्तान की दुख्तर हूँ। रुस्तम से ताल्लुकात कैसे हैं? कोई परेशानी तो नहीं है तुम्हें? अच्छी गुजर रही है आका। वो बुरे दिन अब माजी का हिस्सा बन चुके, लेकिन मेरी परेशानी का सबब कुछ और है और मैं उससे काफी मुतासिर हो रही हूँ। खैरियत होगी इंशाल्लाह। आप जब बीमार हुए थे उस वक्त मुस्तफा ब्रदर से बेमानी झगड़ा हुआ था मेरा। मैंने उनका दिल तोड़ दिया था। एक अरसा गुजर गया,
نہ انہوں نے مجھے مکتوب لکھا اور نہ ہی میں نے. مجھ سے بڑے ہیں وہ، پہلا قدم مجھے ہی اٹھانا چاہیے. فی الحال موسم بھی اچھا ہے تو میں آمسیہ جانا چاہتی ہوں. مصطفیٰ برادر سے ملاقات کرنا چاہتی ہوں، اگر آپ کی اجازت ہو تو. شہزادی لے آئیں کیا؟ انشاءاللہ اس سے کام بن جائے گا. تمہاری بےحد تعریفیں سنی ہے. شہزادی آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ میں بھی آپ سے یہی سوال پوچھنے والا تھا شہزادی. کون تھی وہ خاتون؟ محل میں غیر متعلقہ خواتین کی آمد و رفت بڑھ گئی ہے. جس معاملے سے آپ کا تعلق نہیں اس میں دخل نہ دلانا مصطفیٰ. مسلسل میرا تعاقب کرنے سے میں تنگ آ گئی ہوں. اگر یہ ایسے ہی چلتا رہا تو اس محل میں رہنا مشکل ہو جائے گا. اگر معاملہ شہزادے کی حفاظت کا ہوگا تو میں ہر معاملے میں دخل دوں گا. آپ کو تو معلوم ہی ہے شہزادے کو میں اب تک کوئی اولاد عطا نہ کر سکی. شاید اسی میں کوئی بہتری ہوگی شہزادی. ہمارے رب نے ایسا ہی مناسب سمجھا ہے تو اس میں ضرور کوئی حکمت ہوگی. کیا تمہیں یقین ہے مہربان؟ بعد میں تمہیں جس پر پچھتانا پڑے میں نہیں چاہتی تم ایسا قدم اٹھاؤ. مجھے یقین ہے والدہ، اپنے برادران کی حفاظت کے لیے میں ایسا کرنے پر مجبور ہوں. بابا کی بیماری کے دوران جو کچھ ہوا میں وہ بھول نہیں پائی. اب تک مجھے بھیانک خواب نظر آتے ہیں. اب میں دوبارہ ویسے دن نہیں دیکھنا چاہتی. والدہ امسیہ کیا ابھی بھی بہت دور ہے؟ نہیں، زیادہ دور نہیں. نرگس شاہ اور محمد کو دیکھنا چاہتی ہوں. جلد دیکھ لو گی. والدہ مہرما سلطان کے بارے میں جیسا سنا ہے کیا وہ واقعی اتنی خوبصورت ہے؟ معلوم نہیں، میں کبھی نہیں ملی ان سے. اس سوال کا جواب تو صرف ماہدورہ سلطان ہی دے سکتی ہیں. فیدان تو محمد کو باہر لے جاؤ. مہرما نامی وہ منحوس یہاں کیا کرنے آ رہی ہے؟ ضرور کوئی سازش کرنے آ رہی ہوگی. کیا ہو سکتا ہے ملکہ؟ تم اس سے محتاط رہنا. مصطفیٰ اور محمد کے ساتھ ہرگز تنہا مت چھوڑنا. آپ کیوں پریشان ہو رہی ہیں؟ شہزادی کو زہر تو نہیں دیں گی نا وہ؟ اگر ماں ہورم جیسی ہو تو اس کی اولاد کچھ بھی کر سکتی ہے. پاشا عجم کی سرحد پر تعینات سپہ سالار غفار صاحب آ گئے ہیں. آپ سے ملاقات چاہتے ہیں. فوراً اندر بھیجو انہیں. آپ کا جو حکم. پاشا مجھے بتاؤ مشرقی سرحدوں پر حالات کیسے چل رہے ہیں؟ میرے خیال میں کوئی سنگین صورتحال نہیں ہے پاشا. اہل عجم غیر قانونی مال کی تجارت میں مصروف ہو چکے ہیں. ہم سے الجھنے کی نیت نہیں ہے، یہ آشکار ہے. شاہ طہماسپ کی اس حوالے سے ترکمان والوں سے کچھ بدمزگی ہوئی ہے، یعنی عجم کی حدود کی جانب کوئی واقعہ رونما ہوا ہے، لیکن ہمارا اس سے کوئی تعلق ہو ایسی کوئی بات نہیں.